آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسماء امتیاز ہادیہ کے شمارہ اگست 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کی زمرہ النور، جس کا عنوان ہے درس قرآن، اور اس کی رائٹر عارفہ خاتون ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے۔ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ۔ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ سورہ ہمزہ یا لمزہ قرآن کریم کی 104ویں اور مکی صورتوں میں سے ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 32ویں صورت ہے، جو قرآن کے آخری پارے میں ہے۔ اس میں 9 آیات ہیں۔ یہ 33 کلمات اور 134 حروف پر مشتمل ہے۔ اس کا شمار مفصلات یعنی چھوٹی آیات والی صورت میں ہوتا ہے، اور حجم کے اعتبار سے قرآن کی چھوٹی صورتوں میں سے ہے۔ اس کا نام ہمزہ اور لمزہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ 2 لفظ اس کی پہلی آیت میں آئے ہیں، جن کے معنی عیب جوئی اور بدگوئی کرنے والے کے ہیں۔ اس صورت میں خداوند مال اندوزی کرنے والے افراد کو جہنم کی چکنا چور کر دینے والی آگ سے ڈراتے ہیں، جو عیب جوئی کے ذریعے لوگوں پر برتری کے خواہاں ہیں۔ اس کا نام ہمزہ اور لمزہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ 2 لفظ اس کی پہلی آیت میں آئے ہیں۔ ان 2 الفاظ کے معنی عیب جوئی اور بدگوئی کرنے والے کے ہیں، لیکن ان 2 الفاظ کے دقیق معنی کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں کہ ہمزہ آمنے سامنے عیب جوئی کرنے اور لمزہ پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے کو یا اس کے برعکس کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں ذخیرہ اندوزی کرنے والے افراد کو جہنم کی آگ کی بشارت دیتے ہیں، جو مال و دولت کی کثرت کے بلبوتے پر لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں اور غرور و تکبر کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال و دولت انہیں ہمیشہ زندہ رکھیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ صورت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پیچھے آپ پر تہمتیں لگایا کرتا تھا اور آپ کی شان میں بدگوئی کیا کرتا تھا، جبکہ مفسرین کی ایک اور جماعت ایک ایسے گروہ کے بارے میں نازل ہونے کے قائل ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے در پہ تھے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا ہو اور آمنے سامنے تانے دینے والا ہو۔ واو یا لام ویل، اسمعی نے کہا ہے کہ ویل برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور حسرت کے موقع پر ویل اور تحقیر کے لیے ویس اور ترہم کے ویل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ 79، ابراہیم 2، زخرف 63، یاسین 52، انبیاء 46 اور القلم 31 میں لفظ ویل مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مفردات القرآن ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں، اور جہنم کے گڈھے کا نام بھی ہے، جس کی آگ اتنی تیز ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو دھول ہو جائیں۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے ایک وادی کا نام ویل ہے، جس میں کافر ڈالے جائیں گے، 40 سال کے بعد تلے میں پہنچیں گے۔ ایک ہی کردار کے 2 پہلو ہمزہ کے معنی اشارہ بازی کرنے اور لمزہ کے معنی عیب لگانے کے ہیں۔ ہمزہ اور لمزہ مبالغے کے صیغے ہیں، اور اسی صورت میں آگے حتما بھی اسی وزن پر آیا ہے۔ ہمزہ کے معنی اشارہ بازی اور لمزہ کے معنی عیب جو اور عیب چی کے ہیں۔
اشارہ بازی کا تعلق زیادہ تر حرکتوں اور اداؤں سے ہے اور عیب جوئی کا تعلق زبان سے۔ یہ دونوں ایک ہی کردار کے دو پہلو ہیں۔ جب کسی کا مذاق اڑانا، اس کا متہم کرنا اور اس کو دوسروں کی نگاہوں سے گرانا مقصود ہو تو اس میں اشارہ بازی سے بھی کام لیتے ہیں اور زبان سے بھی۔ اشارہ بازی سے کسی کی تضحیق و تحقیر کے جو پہلو پیدا کیے جا سکتے ہیں بسا اوقات وہ زبان کی فقرہ بازیوں سے زیادہ کارگر ہوتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے ہمزہ کو مقدم رکھا گیا ہے۔ ہمزہ و لمزہ کی عادت مہذب و شائستہ سوسائٹی میں ہمیشہ عیب سمجھی گئی۔ تمام آسمانی مذاہب میں اس کی ممانعت وارد ہے۔ قرآن مجید میں نہایت واضح الفاظ میں اس سے روکا گیا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، سورہ حجرات آیت نمبر 11۔ اور اپنے آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور ایک دوسرے پر پھپتیاں چست نہ کرو۔ دعوت حق کا مقابلہ اوچھے ہتھیاروں سے جدید جاہلیت کی طرح قدیم جاہلیت میں بھی اس فن کا بڑا فروغ حاصل رہا ہے۔ اس زمانے میں جس طرح اخباروں میں مزاحیہ کالم بھی ہوتے ہیں اور کارٹون بھی چھپتے ہیں جو اشاروں کی زبان میں حریفوں کی تضحیق کرتے ہیں، اسی طرح قدیم زمانے میں نقال، بھانڈ اور فقرہ باز ہوتے تھے جو اجرت لے کر شریفوں کی پگڑیاں اچھالتے اور اپنے سرپرستوں کا جی خوش کرتے۔ سورہ قلم میں قریش کے لیڈروں اور ان کے غنڈوں پر قرآن نے جو جامع تبصرہ کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی مسلمانوں کی تواصی بالحق و صبر کی دعوت کو اسی حربے سے شکست دینے کی کوشش کی۔ جو حربے اس زمانے کے پیشہ ور لیڈر اپنے حریفوں کو شکست دینے کے لیے اختیار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ان ہتھکنڈوں سے ہوشیار رہنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّطَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنَّ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ، سورہ قلم میں آیت نمبر 10 سے 14۔ اور تم پر ہر لپاٹی ذلیل کی بات کا دھیان نہ کرو، اشارہ باز اور لگانے بجھانے والے کا، بھلائی سے روکنے والا، حدود سے تجاوز کرنے والا اور حق کو تلف کرنے والا، اجڑ مزید برا چاپلوس باوجہ اس کے کہ وہ مال اور اولاد والا ہو۔ تدبر قرآن۔ ہمزہ اور لمزہ دونوں الفاظ معنی کے اعتبار سے باہم بہت قریب ہیں۔ بعض اہل لغت کے نزدیک روبرو تانہ زنی کرنے والے کو ہمزہ اور پس پشت عیب جوئی کرنے والے کو لمزہ کہتے ہیں، جبکہ بعض اہل لغت نے ان کا معنی برعکس بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہر چغلی کھانے والے، دوستوں میں جدائی اور تفرقہ ڈالنے والے، بے قصور اور بے عیب انسانوں میں نقص نکالنے والے کو ہمزہ اور لمزہ کہتے ہیں۔ بیان القرآن۔ یہ دونوں گناہ سماجی اور اخلاقی اعتبار سے نہایت برے اور خطرناک ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان دونوں گناہوں کے متعلق شدید وعیدیں وارد ہوئی ہیں، لیکن یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو غیبت استہزاء سے زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ غیبت کرنے والا کسی ایسے شخص کی غیبت کرتا ہے جو حاضر نہیں ہے اور جو اپنا دفع نہیں کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ البتہ اگر دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو استہزاء غیبت سے زیادہ شدید ہے، کیونکہ کسی کے روبرو اس کو برا بھلا کہنے میں اس کی توہین و تذلیل بھی ہوتی ہے اور اس کے دل آزاری کا باعث ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے استہزاء کی ایذا غیبت کی ایذا سے بھی اشد ہے، کیونکہ غیبت آدمی کے پشت کے پیچھے ہوتی ہے اور آدمی کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں غیبت کا ذکر آیا ہے۔ غیبت ایک نہایت برا گناہ ہے اور اس سے معاشرے میں بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ غیبت۔ قرآن و حدیث میں غیبت کے متعلق شدید وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کی ایسی بات ذکر کرے جو اس کو بری لگے۔ کسی نے عرض کیا کہ اگر دراصل اس میں وہ عیب ہو تو بھی غیبت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عیب ہے اور تو نے بیان کیا تبھی تو غیبت ہے، ورنہ تو وہ بہتان ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ بے شک ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کو کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، کسی ایسی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے جس سے بچنا دشوار ہو۔
बहरहाल इन दोनों में से एक तो वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था जिसकी वजह से अजाब में मुब्तला है, और दूसरा चुगलखोरी करता था, लोगों की बातें इधर से उधर नकल करता था ताकि उनके दरमियान फितना फैलाए, जिसकी वजह से वो अजाब में गिरफ्तार है। इन दोनों हदीस से वाज़ेह हो रहा है कि बदतरीन लोग वो हैं जो चुगलखोरी करते हैं और लोगों में फितना पैदा करते हैं। अल्लज़ी जमा माला व अद्ददा, जो माल जमा करता हो और उसको बार बार गिनता हो। जीन मीम ऐन अल-जमा के माने हैं मुतफर्रिक चीज़ों को एक दूसरे के करीब लाकर मिला देना। कुरान में है वह जमा अश-शम्सा वल कमरा, और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे। जमा माला व अद्ददा, माल जमा करता है और उसको गिन गिन कर रखता है। मीम या लाम अलमैल के माने वसत से एक जानिब माइल हो जाने के हैं, और अलमाल को माल उसी लिए कहा जाता है कि वो हमेशा माइल और जाइल होता रहता है। ऐन दाल दाद दाल दाल अल अदद गिनती, अहादा मरकबा को कहते हैं, और बाज में इसके मायने तरकीब अहाद यानी अहाद को तरकीब देना भी है, मगर इन दोनों मायने का मर्जा एक ही है। मुफरदातुल कुरान में इस आयत करीमा में तीसरे बड़े गुनाह का जिक्र आया है, और वो गुनाह है कि इंसान खूब माल जमा करने की फिक्र में रहता है और हर वक्त माल गिन गिन कर रखता है। जिस इंसान के दिल में माल की बेहद मोहब्बत, लालच और तमा होती है, तो ये माल की लालच उसको अच्छे कामों में माल खर्च करने से रोकती है। जिसने अपनी ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी जद्दोजहद माल कमाने और उसका हिसाब रखने में बर्बाद कर दी, वो यही सोच सोच कर खुश होता रहा कि उस माह मेरे अकाउंट में इतने फीसद का इजाफा हो गया है, और पिछले साल के मुकाबले में इस साल मेरे असासे-जात इस कदर बढ़ गए। बयानुल कुरान, इस आयत करीमा में जो वईद जिक्र की गई है वो तमाम मालदारों और अहले सरवत के लिए नहीं है, बल्कि वो उन मालदारों के लिए है जो माल इकट्ठा करके रखते हैं और अल्लाह ताला के हुकूक अदा नहीं करते हैं, नीज बंदों के हुकूक और गुरबा मसाकीन के हुकूक अदा नहीं करते हैं। यह सब अन्ना मालहु अखलदा, वो समझता है कि उसका माल उसे हमेशा बाकी रखेगा। हे सीन दे अल हिसाब और हिसाबा, जिसका मानी बेगुमान या ख्याल करना आयत है। अलम अहसिबन नास, क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं। खे लामदाल अलखुलूद के मायने किसी चीज़ के फसाद के आर्जे से पाक होने और अपनी असली हालत पर कायम रहने के हैं, और जब किसी चीज़ में दराज तक तगय्युर और फसाद पैदा ना हो तब उस पर इसका इतलाक होता है। खुलूद के मायने ये है कि इसमें तमाम चीज़ें अपनी अपनी असली हालत पर कायम रहेंगी और उनमें तगय्युर पैदा नहीं होगा। मुफरदातुल कुरान में है कि गोया इसके माल ने उसे जिंदा जावेद कर दिया है। एक दौलतमंद आदमी अपनी दौलत के जरिए दुनिया में ऐसे आसार और नक़ूश छोड़कर जाना चाहता है जिनकी वजह से उसका नाम दुनिया में हमेशा रहे। इंसान की इसी ख्वाहिश ने उसे अहराम मिस्र जैसे अजायबात की तख्लीक पर मजबूर किया। मशहूर अंग्रेजी नज़्म द पिरामिड्स के इन अल्फाज में इंसान की इसी नफ्सियात की अक्कासी की गई है। Calm and self-possessed and resolute pyramids echo into still eternity. They define cry of man's will to strive conquer the storms of time. बयानुल कुरान कल्ला लयुम बज़न्ना फिल हुतमा, हरगिज नहीं वो ज़रूर हुतमा में डाला जाएगा। कल्ला ये हर्फ रो और ज़जर है और माक़ब्ल कलाम के नफ़ी के लिए आता है, और ये हर्फ ईजाब की ज़िद है। लाम ये कई तरह पर इस्तेमाल होता है। अव्वल हुरूफ जारा और इसकी चंद किस्में हैं। नून बेजाल नबज के मायने किसी चीज़ को दरखूद इतना या ना समझ कर फेंक देने के हैं। इसी से मुहावरा मशहूर है, नवज़ता नवज़तल्ला अनल खलक, मैंने उसे पुराने जूते की तरह फेंक दिया। हे तोए मीम, खत्म के असल मायने किसी चीज़ को तोड़ने के हैं, जैसा कि अलहशीम वगैरह अल्फाज इसी मायने में इस्तेमाल होते हैं। फिर किसी चीज़ को रेजा रेजा कर देने और रौंदने पर हुतम का लफ्ज़ बोला जाता है। मुफरदातुल कुरान में है कि हुतमा हतम से है, यानी तोड़ डालने वाली, पीस डालने वाली, चूर चूर और रेजा रेजा कर देने वाली। ये दोज़ख के एक ख़ास तबके का नाम है जिसकी आग इतनी तेज़ होगी कि इसमें जो शय भी डाली जाएगी उसको आन वाहिद में पीस कर रख देगी। बयानुल कुरान में है कि असल में
लयुम्बज़न्ना फरमाया गया है। नीज़ अरबी ज़बान में किसी चीज़ को बेवक़्त और हक़ीर समझकर फेंक देने के लिए बोला जाता है। इसी से खुद बखुद ये इशारा निकलता है कि अपने मालदारी की वजह से वो दुनिया में अपने आप को बड़ी चीज़ समझता है, लेकिन क़यामत के रोज़ उसे हिकारत के साथ जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। तफ़हीमुल कुरान में वमा अदराका मल हुतामा, और तुम क्या जानो कि चूर चूर कर देने वाली क्या है। ये इस्तफ़हाम इसकी हौलनाकी के बयान के लिए, यानी वो ऐसी आग होगी कि तुम्हारी अक़लें उसका अदराक नहीं कर सकती और तुम्हारा फहम शऊर उसकी तह तक नहीं पहुँच सकता। इस चूर चूर कर देने वाली आग की हौलनाकी को नुमाया करने के लिए फरमाया कि तुम क्या जानो कि वो चूर चूर कर देने वाली क्या है और कैसी है। ज़ाहिर है कि खालिक के सिवा उसका जवाब और कौन दे सकता है। रूहुल कुरान नारुल्लाहिल मुक़दा, वो खुदा की भड़काई हुई आग है। नून वाव रा नारा, इस शोले को कहते हैं जो आंखों के सामने जाहिर होता है। अलिफ लाम है अल्लाह। बाज़ का कौल है कि अल्लाह का लफ्ज़ असल में इला है, हुमज़ा तख़फ़ीफ़न हज़फ कर दिया गया है और इस पर अलिफ लाम तारीफ लाकर बारी ताला के लिए मखसूस कर दिया गया है। इसी तख़सीस की बिना पर फरमाया हल तअल्लमा लहुल समिया, क्या तुम्हें इसके किसी हम नाम का इल्म है। इला का लफ्ज़ आम है और हर माबूद पर बोला जाता है, ख्वाह वो माबूद बरहक हो या माबूद बातिल। और वो सूरज को इलाह कहकर पुकारते थे क्योंकि उन्होंने उसको माबूद बना रखा था। इला के इश्तिक़ाक़ में मुख्तलिफ अक़बाल हैं। बाज़ ने कहा है कि ये इला फ़ा या लाम फ़ला व साला से मुश्तक़ है, जिसके मायने परस्तिश करने के हैं। इस बिना पर इला के मायने होंगे माबूद। और बाज़ ने कहा है कि ये इला सीन बामानी ताहय्युर से मुश्तक़ है और बारी ताला की ज़ात और सिफ़ात के अदराक से, चूँकि अक़ूल मुतहय्यर और दरमानदा है, इसलिए इसे अल्लाह कहा जाता है। इसकी तरफ इशारा करते हुए अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इसलिए कि इंसान जिस पर सिफ़ात इलाहिया में गौर व फ़िक्र करता है उसकी हैरत में इजाफ़ा होता है। इस बिना पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की नेमतों में गौर व फ़िक्र किया करो और उसकी ज़ात के मुतालिक मत सोचा करो। वाव काफ दाल वक़दतन नार वक़ूद वक़द, आग रोशन होना। अलवक़ूद ईंधन की लकड़ियाँ जिनसे आग जलाई जाती है और आग के शोले को भी वक़ूद कहते हैं। मुफ़रदातुल कुरान, यानी इस आग की वहदत और तपिश इंसान की जिद से ज़्यादा उसके दिल पर असर अंदाज होगी। बहरहाल आज जब इंसान खुद इंफ्रारेड रेज और अल्ट्रावायलेट रेज समेत आग हरारत की रंगारंग अक़साम ईजाद कर चुका है, इसके लिए हुतामा की मज़कूरा खुसूसियत को समझना बहुत आसान हो गया है। एक साहब ने ख्याल पेश किया है कि हुतामा एटमी हरारत की कोई शक्ल होगी। उनका कहना है कि एटम से जो हरारत फैलती है वो बराह रास्त आग नहीं होती, लेकिन इंसान के वजूद को चीरती चली जाती है। बयानुल कुरान में है कि अल्लाह की भड़काई हुई आग की एक ख़ास सिफत है कि इस हुतामा की वजाहत है कि ये अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों पर जा चढ़ेगी, यानी उसका ख़ास मिजाज होगा कि वो सबसे पहले उन दिलों को पकड़ेगी जिनमें माल की मोहब्बत इस तरह रची बसी रही है कि उसने खुदा और आखिरत की याद के लिए कोई जगह उनके अंदर बाकी नहीं छोड़ी। इस आग की मतलूब ग़िज़ा चूँकि उन्हीं दिलों के अंदर होगी, इसी वजह से इसका सबसे पहला हमला उन्हीं पर होगा। इस ज़माने में ख़ास चीज़ों के ताक़ुब के लिए ऐसे आलात ईजाद हो गए हैं जो दूर ही से अपने शिकार को भांप लेते हैं और खुद उनका पीछा शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि उनको मार गिराते हैं। यही हाल अल्लाह ताला की भड़काई हुई उस आग का होगा। ये उन दिलों पर खुद ब खुद जा चढ़ेगी जो माल के इश्क में गिरफ्तार और अल्लाह के हाजतमंद बंदों के हुकूक से बेपरवाह रहे। तदब्बुर कुरान में अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा, जो दिलों पर जा चढ़ेगी। तो इलाम ऐन तला अशम्स तुलुआ व मतलआ के माने आफ्ताब तुलु होने के हैं। फे हमजा दाल व फवाद के माने कल्ब यानी दिल के हैं, मगर कल्ब को फवाद कहना मानी तफूद यानी रोशन होने के लिहाज से है। मुहावरा है कि फ़अरदातुल लहम, गोश्त को आग पर भून लेना। लहम फ़ईद, आग में भुना हुआ गोश्त। कुरान में है माकज़्ज़बल फ़ुआदा मारा, जो कुछ उन्होंने देखा उनके दिल ने उसको झूठ न जाना। असल अल्फाज है तत्तलिउ अलल अफ़िदा। तत्तलिउ इतला से है जिसके एक माने चढ़ने और ऊपर पहुँच जाने के हैं,
और दूसरे माने बाखबर होने और इत्तला पाने के हैं। इफ्तिदा फ़ुआद की जमा है जिसके माने दिल के हैं, लेकिन ये लफ्ज़ इस उज़ू के लिए इस्तेमाल नहीं होता जो सीने के अंदर धड़कता है, बल्कि उस मुकाम के लिए इस्तेमाल होता है जो इंसान के शऊर और अदराक और जज्बात, ख्वाहिशात, अक़ायद, अफ़कार, नियतों और इरादों का मकाम है। दिलों तक उस आग के पहुँचने का एक मतलब ये है कि ये आग उस जगह तक पहुँचेगी जो इंसान के बुरे ख़यालात, फासिद अक़ायद, नापाक ख्वाहिशात और जज्बात, खबीस नियतों, इरादों का मरकज़ है। दूसरा मतलब ये है कि अल्लाह की वो आग दुनिया की आग की तरह अंधी नहीं होगी कि मुस्तहक और गैर मुस्तहक सबको जला दे, बल्कि वो एक एक मुजरिम के दिल तक पहुँचकर उसके जुर्म की नौइयत मालूम करेगी और हर एक को उसके इस्तेकाक के मुताबिक अज़ाब देगी। तफ़हीमुल कुरान में है कि तत्तलिउ अलल अफ़िदा, यानी जहन्नुम की ये आग दिलों तक पहुँच जाएगी। यूँ तो हर आग का ये खासा है कि वो जो भी उस पर पड़े उसके सब ही अज्जा को जला देती है, मगर दुनियावी आग जीते जी दिल तक नहीं पहुँचती, बल्कि दिल तक पहुँचने से पहले ही इंसान की मौत वाक़ हो जाती है, बखलाफ जहन्नुम की आग के कि वो जलाती जलाती दिल तक पहुँच जाएगी, इसलिए कि जहन्नुम में मौत नहीं है। इन्नहा अलैहिम मूसदा, यानी जहन्नुम में मुजरिमों को डालकर ऊपर से उसको बंद कर दिया जाएगा, कोई दरवाज़ा तो दरकिनार कोई झिरी तक खुली हुई ना होगी। वाव स्वाद दाल अलवसीद असल में इस अहाते को कहते हैं जो मवेशी के लिए पहाड़ में बना लिया जाए। इस आयत में इसके माने गार का सहन या दरवाजे की चौखट के हैं। इसी से और सदक़तुल बाब व सादत का मुहावरा है कि जिसके माने हैं मैंने दरवाजे को बंद कर दिया। चुनांचे कुरान में है अलैहिम नारु मूसदा, ये लोग आग में बंद कर दिए जाएंगे। कुरान में मूसदा हुमज़ा के साथ है और आयत के मायने हैं इस आग को उन पर बंद कर दिया जाएगा। अलबसीर ईज़ा पौधा जिसकी जड़ें ज़्यादा गहरी ना हो। मुफ़रदातुल कुरान में है कि मूसदा जहन्नुम के दरवाजे और रास्ते बंद कर दिए जाएंगे ताकि कोई बाहर ना निकल सके, और इन्हें लोहे की मेखों के साथ बांध दिया जाएगा जो लंबे लंबे सुतूनों की तरह होंगी। बाज़ के नज़दीक अमद से मुराद बेड़ियाँ या तौक हैं और बाज़ के नज़दीक सुतून, जिनमें उन्हें अजाब दिया जाएगा। ये आग उन पर इस तरह भड़केगी, ऊपर से और ढांक भी दी जाएगी कि तपिश का कोई हिस्सा ज़ाय न हो, बल्कि सब का सब उनके जलाने ही में महसूस हो। और सदुल बाब के मायने होंगे दरवाजे को बंद कर दिया। यह आग भी भट्टा और पजावा की आग की तरह ऊपर से ढांक दी जाएगी ताकि वो पूरी कुव्वत के साथ अपना अमल करे। फी अमादि मुमद्ददा, इस हालत में कि वो ऊंचे ऊंचे सुतूनों में घिरे हुए होंगे। फी अमादि मुमद्ददा के कई मायने हो सकते हैं। एक ये कि जहन्नुम के दरवाजे को बंद करके उन पर ऊंचे ऊंचे सुतून गाड़ दिए जाएंगे। दूसरा मतलब ये है कि ये मुजरिम ऊंचे ऊंचे सुतूनों से बंधे हुए होंगे। तीसरा मतलब ये इब्न अब्बास ने बयान किया है कि इस आग के शोले लंबे सुतूनों की शक्ल में उठ रहे होंगे। मुख्तलिफ तफासीर इस सूरत के मुताले से ये वाज़ेह होता है कि इंसान को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा तबाह कर दिया है वो उसकी ज़बान का बिगाड़, उसके अखलाक की पस्ती है, और जिस चीज़ ने इंसानियत को न सिर्फ खतरात की नज़र किया बल्कि हैवानों से भी नीचे गिराया, वो उसकी माल और दौलत से हद से बढ़ी हुई मोहब्बत है। और इंसान अजीब वाक़या हुआ है कि एक तरफ तो अल्लाह ताला ने उसे इल्म और दानिश का सरमाया बख्शा है और उसके दिल को इश्क के गुदाज से मामूर फरमाया है, और दूसरी तरफ उसकी पस्ती का आलम यह है कि माल और दौलत की मोहब्बत का असीर होकर वो इंसानी अक़दार तक को भूल जाता है, जिसका नतीजा दुनिया में रिश्तों और नातों की शिकस्त, फरीक़त, रहम, मुरब्बत के जज्बात की तबाही और क़ुव्वत मोहब्बत का फ़ुक़दान, और आखिरत में वो हौलनाक अंजाम है जिसका नक्शा ऊपर की आयत में खींचा गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें तबाही से महफूज रखे। हादिया मज़मून की ऑडियो समाअत करने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमें आपके मशवरे का इंतजार रहेगा। अपना मशवरा, तबसरा और मज़ामीन editor@hadia.in पर इरसाल करें और हादिया मैगज़ीन के मज़ामीन को पढ़ने के लिए वेबसाइट www.hadia.in सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम अगले हादिया मैगज़ीन के शुमारे से दिलचस्प मज़ामीन की ऑडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।